Okay. Okay, now we are going to learn about the present indefinite tense. In present indefinite tense, the significance of present indefinite tense is that we can express our daily actions, our present habitual action, daily routine, and present permanent action. All these things are related to our present permanent actions. Like if we want to tell about this, so this is our structure: subject, first form of the verb, and object. And here you can see that with he sheet we will use the first form, but with first form we use s or es, and with the words which will end with s, sh, ch, o, and x, they will carry es with them, like reach, like pushes, like goes, like fixes. And then with I, we, they, you, we just use the first form of the verb. Okay, I play cricket, we play cricket, and they play cricket. And but when we talk here about here, he plays cricket, she plays cricket, so on. If we want to make interrogative, we use does at the start of the sentence, and we use does for he sheet. And then after, when we shall use the does and do, there will be no s or es here. Okay, so after that, you can make here: does he play cricket? Does she play cricket? Does Ali play cricket? Do I play cricket? Do we play cricket? Do you play cricket? Okay. And then if you want to make the negative, you will say that does not and do not. He does not play cricket, she does not play cricket, it does not play cricket. Ahmed does not play cricket, I do not play cricket, we do not. We will use do not with this green area, I, we, they, you, and does not with he she. Got it? Yes. Okay, Yes. another thing that is very important: at the start of the interrogative sentences, we can use these words like who, where, how, when, whose, with whom, from where, what. Like what का मतलब हमारी लैंग्वेज में क्या होता है, from where, from where कहाँ से, Uh-huh. कहाँ से, with whom किस के साथ, Yes. whose Yes, sir. किस का. ओके, when का मतलब होता है कब, कब आओगे. हाउ का मतलब कैसे. ठीक है, वेयर का मतलब कहाँ. ठीक है, हु का मतलब कौन. समझ आ गई बात. ठीक है, जब हम ये चाहते हैं, Yes. व्हेन वी वांट टू से दैट कि ये हु, डू यू प्ले, तुम, यानी कि तुम किसके साथ खेलते हो. वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो. हाउ डू यू प्ले, तुम कैसे खेलते हो. व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो. हुज, जब हुज आता है तो हुज के साथ चीज का नाम लिखना पड़ता है, नाउन आता है इसके फौरन बाद. हुज पेन डू यू यूज, हुज कार डू यू यूज. ओके, विद होम का मतलब होता है किसके साथ. विद होम डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, विद होम डू यू गो टू प्ले ग्राउंड, फ्रॉम वेयर डू यू कम टू स्टडी. ठीक है, व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट. तो समझ आ रही है आप लोगों को. Yes, sir. Yes, sir. दोनों को आ रही है ना, शाबाश, गुड हो गया. सो अब क्या होना है, अब टाइम ऑफ एक्शन चेंज होना है. यहाँ पे जब हमने बात की तो ये हैं आपके प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन. कौन से एक्शन है. प्रेजेंट परमानेंट Present एक्शन, habit. डेली रूटीन, हैबिचुअल, डेली एक्शन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पास्ट एक्शंस, पास्ट हैबिचुअल एक्शन. मैं अपनी कंपनी में जाता था, मैं अपने कॉलेज जाती थी, मैं पढ़ता था, मैं ये करता था. ठीक है, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए आप ये चीज यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यहाँ पर क्या होता है कि यू यूज second form of the verb. Structure is same: subject, verb, and object. But here you are going to use the second form of the verb. You are going to use the second form. Second Second. one. Okay. With he, she, And I, with they, you will use second form. He played cricket, she played cricket, it played cricket, Ali played cricket, I played cricket, we played cricket, you played cricket, they played cricket, Bakir and Ahmed played cricket. यानी क्या हम कहना क्या चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलते थे. अगर वो पढ़ते थे तो ही स्टडीड इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ता था. ही रोट लेटर्स, वो खत लिखता था. ही हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करता था. दो तरह से हमारी लैंग्वेज में इसका आता है एक्सप्रेशन कि हम इस तरह भी कह सकते हैं
कि ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली या वो क्रिकेट खेला। यानी दो तरह से हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में ऐसे कर सकते हैं, वो गया, तुम गए, हम गए, या हम ये कह सकते हैं वो जाता था, तुम जाते थे, हम जाते थे। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब क्या है, क्या चेंज हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? Time of action. तो जैसे ही टाइम ऑफ एक्शन चेंज हुआ, हमने क्या किया, तो उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म की जगह बस यही फर्क आया कि उधर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, इधर सेकंड फॉर्म। गॉट इट? Second one. Okay, now we Yes, are sir. moving towards the interrogative. Interrogative में क्या होता है कि यहाँ वहां पे डू और डज लगता था, यहाँ पे डिड लगेगा। डिड ही प्ले क्रिकेट, लेकिन जब डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड शी प्ले क्रिकेट, डिड इट प्ले क्रिकेट, डिड अली प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड बाकिर एंड अहमद प्ले क्रिकेट। तो इसमें क्या होता है, जब हम उनसे पूछते थे कि डू यू ईट वेजिटेबल, क्या तुम वेजिटेबल्स खाते हो, यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं डिड यू ईट वेजिटेबल्स, क्या तुम वेजिटेबल्स खाते थे। डिड यू गो टू यूनिवर्सिटी, क्या तुम यूनिवर्सिटी जाते थे। डिड यू स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते थे। डिड यू राइट लेटर, क्या आप खत लिखते थे। डिड यू हेल्प द पुअर, क्या आप गरीबों की मदद करते थे। तो अब जैसे वक्त चेंज हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गया और उसके रूल्स भी। डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ओके हो गया, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. आमिर आपको भी? Yes, sir. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट आएगा, सबके साथ ही डिड नॉट आएगा, और अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। हम कहेंगे कि वो ये काम नहीं करता था, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट, आगे वर्ब मैंने और भी लिखे हुए हैं, हम ये प्ले की जगह ये लगा सकते हैं, ही डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, ही डिड नॉट राइट लेटर, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर। यानी यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, सबके साथ ही डिड नॉट आएगा। और डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ओके, और हम ये देखते हैं कि पास्ट में सिर्फ पास्ट सिंपल में यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, और जो इसका इंट्रोगेटिव है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म है, और इसके नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म है। गॉट इट और नॉट? एंड Yes, sir. सेम स्टाइल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जैसे वहां पर हम यूज करते थे व्हेन, वेयर, व्हाई, इसी तरह आप सवालिया फिक्रों के शुरू में किसी भी टेंस में ये यूज कर सकते हैं कि व्हाट डिड बाकिर एंड अहमद प्ले, बाकिर एंड अहमद क्या खेलते थे। फ्रॉम वेयर डिड यू प्ले, तुम कहाँ से खेलते थे, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर डिड यू कम, सॉरी, फ्रॉम वेयर डिड यू कम, तुम कहाँ से आते थे, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय वेजिटेबल्स, तुम वेजिटेबल्स कहाँ से खरीदते थे, वहां तो मिलती नहीं है, ठीक है ना। विद होम डिड यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज किसके साथ जाते थे। हुज कार डिड वी यूज, अब किसकी कार यूज करते थे। व्हेन डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया, तुम सऊदी अरेबिया कब गए। इस तरह भी हम कह सकते हैं, थे नहीं, गए भी कह सकते हैं, ठीक है। हाउ डिड यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट के कैसे खेलते थे। वेयर डिड यू वेयर डिड यू बाय वेजिटेबल, तुम कहाँ से वेजिटेबल खरीदते थे। हु डिड यू प्ले, तुम कौन था जो तुम्हारे साथ खेलता था। ओके, तो Okay, मुश्किल sir. तो नहीं Okay. लग रहा आप लोगों को? No, sir. अच्छा, नहीं, अब sir. ओके, इसमें Okay. क्या है, इसकी हमारी जिंदगी में क्या है, जब आपने वहाँ प्रेजेंट रूटीन सुनाई थी तो यहाँ पे आप अपनी पास्ट रूटीन सुनाएंगे। लेक्चर खत्म होने वाला है, अगर खत्म हो जाएगा तो इसको खत्म ही समझिएगा, फिर हम व्हाट्सएप पे कोई चैट वगैरह कर लेंगे जो भी आपको इश्यूज होंगे, और ये लेक्चर आईसीटी आइट्स पे अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। पिछले वाला लेक्चर हो चुका है, वहाँ देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आप अपनी प्रेजेंट रूटीन सुना सकते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर फजर प्रेयर, इस तरह करके। ओके, I got up early in the morning, I offered Fajr prayer, I went for morning walk, I ate breakfast at 8 o'clock. Okay, तो इस तरह आप अपनी पास्ट रूटीन, यानी वहां पे प्रेजेंट रूटीन थी और यहाँ पे पास्ट रूटीन। ओके, Okay. Sir. thank you very much. This is the end of your lecture. Talk to you tomorrow early in the morning at 8 o'clock inshallah. Allah Hafiz.